جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا علیم یا علیم یا علیم۔ جی ہماری سورہ زمر، اور سورہ زمر کے اندر ہم نے ہمارا دوسرا رکوع تھا، تیسرا رکوع، کیا تیسرا رکوع جس کے لیے اسلام کے لیے دل کو کھول دے، جس کے لیے وہ سارا ہمارا تھا، پورا ہو گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہماری آیت نمبر 23 کے بعد سے ہمارا تھا، 23 تک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 24 سے ہمارا تھا۔ اچھا، ہمارے 3 پارے مکمل ہو گئے، 3 پارے ہو گئے مکمل۔ پہلا 21واں پارا تھا نا ہمارے، 21ویں پارے سورہ روم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ربو سے شروع ہوتا ہے روم۔ آپ کی کلاس میں کوئی حافظ قرآن ہے؟ جی ہاں، ربو سے شروع ہوتی ہے سورہ روم۔ اچھا، اور بھی ہمارا 23واں پارا چل رہا ہے نا؟ ہاں کیا 2 مکمل ہوئے، تیسرا کتنا ہوا یہ بتائیں؟ پارا مکمل، پارے کی بات نہیں ہو رہی، پورے 3 پارے، کیونکہ وہاں سے بھی ربو تھا ہمارا۔ ایک پاؤ کب ہو رہے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ 24واں پارا لگے گا، 3 پارے تب ہوں گے، تو کب ہوگا وہ؟ یہ پوچھ رہی، یہی تو آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ میری بات نہیں سمجھ رہی نور صبا، بس بات نہیں سمجھ رہی، میں کہہ رہی ہوں وہ چیک کریں پہلے، میری بات نہیں سمجھ رہی آپ۔ یہ سورت پوری ہوگی نا، سورہ زمر پوری ہوگی، پھر اس کے بعد ہوگا نا، ٹھیک ہے، بس یہی بات جاننا چاہ رہی تھی۔ جی اچھا جی، اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک ہے، آیت نمبر 75 تک، پھر اس کے بعد ہمارے 3 پارے مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے اس کے بعد ایک ایک پارے کا گرینڈ ٹیسٹ بھی لینا نا، پورے پورے پارے کا انشاءاللہ، اس لیے بتا رہی تھی۔ 3 پارے ہوں، اس کے بعد میں نے پھر ایک ایک پارے کا آگے سے پڑھاتی رہوں گی، اور پیچھے سے پورے پورے پارے کا، کیونکہ تھوڑا تھوڑا سا تو دے دیا نا، اس کے بعد صورتیں صورتیں دے رہے ہیں پھر اس کے بعد۔ جی آیت نمبر 24 سے ہمارا ہے، آیت نمبر 24۔ افمن، کیا پس جو، یتقی بچائے، یتقی حرف اصلی کیا ہے؟ وقف واو، ہاں یا تکا ہے؟ آخر میں واو ہے، آخر میں یا ہے جی۔ حرف اصلی کیا ہے؟ یہ اصل میں صیغہ کیا تھا؟ یتقی، یو تقیو تھا نا، یہ یو تقیو تھا یہ، ٹھیک ہے، واو خوف یا، غور سے دیکھیں اس کو، ابھی آپ لوگ غلط بتا رہے تھے، جیسے ہی میں نے بتایا تو سب کے سر ہلنے لگے۔ کیا پس جو بچائے بے وجہ ہی، اپنے چہرے کو، سوء العذابی، برے عذاب سے، کیا پس وہ جو بچائے اپنے چہرے کو برے عذاب سے قیامت کے دن، جو یہ کافر ہوگا۔ وقیل، اور کہا جائے گا، للظالمین، ظالموں سے کہا جائے گا، ذوقوا، چکھ لو، ما کنتم تکسبون، جو تم کیا کرتے تھے، کذبا، جھٹلایا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فاتاہم، پس آ گیا ان کے پاس، عذاب و عذاب، من حیث، جہاں سے، لا یشعرون، ان کو توقع بھی نہیں ہوگی، وہاں سے ان کے پاس عذاب آ جائے گا۔ پھر کہا جائے گا، فَأَذَاقَهُمْ، بس چکھا دی تھی ہم ان کو، اللہ نے، خزیہ، رسوائیاں، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی رسوائیاں چکھا دی تھی،
वला अज़ाबुल आखिरा, और आखिरत का अजाब अकबरू, ये तो बहुत बड़ा है। लव कानू यालमून, काश ये लोग जान लेते। वलखत, और अलबत्ता यकीनन, ज़रबना, हमने बयान किया लोगों के लिए इस कुरान में मिन कुल्ली मसल, हर किस्म की मिसालें, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। कुरान, कुरान अरबियन, अरबी जबान में है, गैर ज़ी इवजिन, जिसमें कोई कजी नहीं है, लअल्लहुम, ताकि ये लोग यत्तकून, ताकि ये लोग डरे। ज़रब अल्लाहु, बयान की अल्लाह ने मिसाल, रजुलन, एक आदमी की, एक ऐसा गुलाम है जिसकी अल्लाह ने मिसाल बयान की उस आदमी की, ही उस आदमी में, शुरका, कई शरीक है, वो कई आकाओं का गुलाम है, और आका उसके कैसे हैं, मुतशाकिसूना, उनकी आपस में जिद है, मुतशाकिसूना, उनकी आपस में क्या है, उनकी आपस में जिद है। और वरजुलन, और एक ऐसा गुलाम है, एक ऐसा आदमी है, सलामन, के वो पूरा का पूरा, ले रजुलिन, एक आका के लिए है, ले रजुलिन, एक आदमी के लिए, क्या, सिर्फ एक उसका आका है, उसके लिए वो है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हल क्या, यस्तवी, यानी क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, मसलन, मिसाल के एतबार से, एक जैसे होने के एतबार से। तो एक अल्लाह है, उसका पूरा बंदा गुलाम है, और एक ऐसा है जिसके, एक ऐसा है आदमी जिसके बहुत सारे रब है, बुद्ध भी रब है और अल्लाह भी रब है। क्या ये दोनों हालात के एतबार से बराबर हो सकते हैं? हल क्या, यस्तवी, यानी ये काफिर जिसके बहुत सारे रब है और एक मुसलमान जिसका सिर्फ एक ही रब है, क्या ये दोनों हालत के एतबार से बराबर हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। बल के अक्सर उनमें से अक्सर, ला यालमू, नहीं जानते। इन्नका, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मय्यतुन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से रुखसत होना है। व इन्नहुम, और बेशक ये भी, मय्यतुन, ये सारे दुनिया वाले भी, या ये सारे मुशरिकीन भी मर जाएंगे। सुम्मा, फिर, इन्नकुम, बेशक तुम, यौमल क़यामा, क़यामत के दिन, इंद रब्बिहिम, अपने रब के पास, तख्तसिमून, तुम झगड़ा करोगे। कोई दाई बन के आएगा, कोई मुद्दई बन के आएगा, कोई, तुम अपने झगड़े कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास लेकर आओगे। अब इसके अंदर देख लीजिए, क्या वो शख्स जो अपने चेहरे से आंख को बचाए, जहन्नम की सख्त हौलनाकी का बयान। इंसान की आदत यह है कि दुनिया में कोई तकलीफ की चीज सामने आ जाए तो अपने हाथों और पाँव को चेहरा बचाने के लिए ढाल बनाकर दूर करता है उसको। खुदा की बना अहले जहन्नुम के हाथ पांव से मुदाफियत भी नसीब नहीं होगी। उन पर अजाब आएगा तो बराह रास्त उनके चेहरों पर पड़ेगा, और ये मुदाफियत करना चाहेंगे जी तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जहन्नुम में उनके हाथ पांव डाल बांध कर उनको डाला जाएगा। हजरत अता बिन इब्न ज़ैद ने फरमाया, जहन्नमियों को जहन्नुम में हाथ पांव बांध कर घसीटा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मय्यत बतशदीद, या इसको कहते हैं जो जमाने मुस्तकबिल में मरने वाला हो, और मय्यत बसकून या, उसको कहते हैं जो मर चुका हो। मय्यत, मर चुका है। मय्यतून, मय्यत, जो मरने वाला हो। आपको फरमाया, आप भी और आपके दुश्मन भी और अहबाब सब ने दुनिया से जाना है। बयान करने का ये मकसद है सबको फिक्र आखिरत की तरफ मुतवज्जा करना और अमले आखिरत में लगने की तरगीब देना। ये भी बता दिया, अफजलुल खलाइक, सैयद रसुल होने के बावजूद मौत आपको भी आनी है, और आपकी वफात के बाद लोगों पर, और आपकी वफात के बाद लोगों में इस पर इख्तिलाफ पैदा ना हो। कयामत के दिन महशर में जो है ये
झगड़ा करना। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं यहाँ लफ्ज इन्नकुम में मोमिन व काफिर मुसलमान जालिम और मजलूम सब दाखिल हैं। सब अपने मुकदमात लेकर अल्लाह की अदालत में पेश करेंगे। अल्लाह ताला जालिम से मजलूम का हक दिलवाएंगे, चाहे वो काफिर हो मोमिन हो, और हुकूक की अदाई की ये सूरत होगी। सही बुखारी में है, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स के जिम्मे किसी का हक होगा उसको चाहिए कि दुनिया में ही उसको अदा कर ले या माफ करा दे या हलाल करवा ले, क्योंकि आखिरत में दिरहम दीनार तो होंगे ही नहीं। अगर जालिम के पास कुछ नेक अमाल है तो बमिक़दार जुल्म ये अमाल उसको लेकर मजलूम को दे दिए जाएंगे। अगर उसके पास हसनात नहीं रहेंगी, नेकियां नहीं रहेंगी, तो मजलूम के गुनाह इसके ऊपर डाल दिए जाएंगे। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा हम तो उसको समझते हैं जिसके पास माल ना हो। आपने फरमाया हकीकी मुखलिस वो है मेरी उम्मत में से जो कयामत के दिन नेकियां तो बहुत लेके आएगा, मगर उसने किसी को गाली, तोहमत, नाजायज माल, किसी को कत्ल, किसी को मारपीट, और अल्लाह ताला सब मजलूमों को ये हक देंगे कि वो उससे नेकियां ले ले। जब उसकी हसनात खत्म हो जाएंगी, फिर उसके बाद मजलूमों के गुनाह को उसके ऊपर डाल दिया जाएगा और फिर इस शख्स को जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अबू अंसारी से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले मुकदमा अल्लाह ताला की अदालत में पेश होगा, वो मर्द और उसकी बीवी का होगा, और बखुदा के वो वहां जबान से नहीं बोलेगी बल्कि औरत के हाथ पांव गवाही देंगे वो अपने शौहर पर क्या क्या ऐब लगाया करती थी। इस तरह मर्द के हाथ पांव भी गवाही देंगे किस तरह वो अपनी बीवी को तकलीफ पहुंचाता था। उसके बाद हर एक आदमी की उसके नौकर चाकर लाए जाएंगे, उनकी शिकायत का फैसला किया जाएगा, फिर आम बाजार के लोग, इसी तरह ये सारे मामलात होंगे। सारे आमाल मजालिम और हुकूक के बदले में दे दिए जाएंगे, मगर ईमान नहीं दिया जाएगा, और गुनाहों को भुगतने के लिए बालाके इसको जहन्नम में डाला जाएगा। और फिर जब ये सब अमाल को भुगत लेगा फिर उसको जन्नत में डाला जाएगा और जन्नत में ही हमेशा रहेगा। इमाम बहकी ने इसी को रिवायत फरमाया है। जी, अब हमारा 24वां पारा शुरू हो रहा है। ठीक है। फमन अजलमू कौन बड़ा जालिम होगा, मिम्मन उससे, कज़बा जिसने झूठ बांधा अल्लाह पर, वकज़्ज़बा और झुटलाया बिस्सिद्क़ी सच्चाई को। कौन उससे बड़ा जालिम होगा जिसने झूठ बांधा अल्लाह पर और झुटलाया बिस्सिद्क़ी सच्चाई को जब उसके पास आ गई। उससे बड़ा भी जालिम कोई हो सकता है जिसने अल्लाह के ऊपर झूठ बांध दिया कि अल्लाह के साथ बहुत सारे बुत हैं, और उसने सच्चाई को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई लेके आए उसको झुटलाया। अलैसा क्या नहीं है, फी जहन्नमा जहन्नम, मसवा ठिकाना, लिल काफिरीना काफिरों का ठिकाना नहीं है। वल्लजी और वो जो जा लेके आए बिस्सिद्क़ी सच को लेके आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनकर हक को लेके आए, सच को लेके आए। जी जी आ जाइए। वसद्दक़ा और तस्दीक की। कौन सा निकाल? जी जी। वसद्दक़ा और तस्दीक की बिही इनकी, हजरत अबू बकर ने उनकी तस्दीक की। उलाइका यही लोग हुमुल मुत्तक़ून यही लोग मुत्तक़ीन हैं। लहुम उनके लिए मा यशाऊना जो वो चाहेंगे, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास होगा। ज़ालिका ये जज़ाउ बदला है, मोहसिनीन अच्छे काम करने वालों का ये बदला है। लियुकफ्फिरा ताकि अल्लाह दूर कर दे, अल्लाहु अल्लाह अनुम उनसे, अस्वा उनकी बुराइयों को, अल्लज़ीना वो लोग, अमिलू जो उन्होंने आमाल किए हैं, छोटी मोटी कोताहियां अल्लाह ताला उनकी उनसे दूर कर दे। पर यजजियहुम अल्लाह उनको बदला दे, अजरहुम उनका बद अजर, बेअहसनी अच्छा, अल्लजी वो जो कानू वो थे, यामलून जो वो अमल करते थे। अलैहिस्सलाहु क्या नहीं है अल्लाह, बेकाफिन अल्लाह ताला काफी नहीं है, अब्दहू अपने बंदे को,
اللہ تعالیٰ کی ذات کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ اور وہ آپ کو ڈراتے ہیں بالذین ان بتوں سے من دونہ ہی جو اللہ کے علاوہ ہے ومن اور جس کو یضلل اللہ جس کو اللہ گمراہ کر دے فما لہ پس اس کے لیے نہیں ہے من ہاد کوئی ہدایت دینے والا اور جس کو اللہ ہدایت دے فما لہ پس نہیں ہے اس کو من مضل کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے علیہ اللہ کے اللہ نہیں ہے بے عزیز زبردست انتقام اللہ انتقام لینے والے نہیں ہے اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین پر تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے قل کہہ دیجیے فرائی تم بھلا بتاؤ تم جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اگر ارادہ کرے میرے ساتھ اللہ بضر کوئی تکلیف پہنچانے کا ان سے پوچھ لے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے حل کیا ہننا کوئی ہے کاشفات دور کرنے والا ضر ہی اس تکلیف کو اور اگر اللہ ارادہ کرے میرے ساتھ برحمت رحمت کا حل کیا ہننا اس رحمت کو کوئی ہے ممسکات روکنے والا رحمت ہی اس کی رحمت کو اے نبی ان سے کہہ دیجئے فرما دیجئے حسبی اللہ مجھے اللہ کافی ہے علیہ اسی پر یتوکل المتوکلون بھروسہ یتوکلون بھروسہ کرنا چاہیے متوکلون بھروسہ کرنے والوں کو قل کہہ دیجئے یا قومی اے میری قوم اے معلوم عمل کرو علی مکانتکم اپنی جگہ پر انی بے شک میں بھی عاملون میں بھی عمل کرنے انی بے شک میں بھی عاملون عمل کرنے والا ہوں فسوف پسند قریب تعلمون تم جان لوگے میں یاتی ہی من کون ہے یاتی ہی آتا ہے اس کے پاس عذاب آئے گا یخزی ہی جو اس کو رسوا کر دے گا کون ہے کہ جس کے پاس عذاب آئے اور اس کو رسوا کر دے وہ یحل اور اترتا ہے اس پر عذاب مقیم قائم رہنے والا کون ہے جس کے اوپر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب اترتا ہے عذاب العذاب مقیم ہمیشہ رہنے والا انا بے شک نزلنا ہم نے نازل کیا ہے آپ کے بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کے اوپر کتاب للناسی لوگوں کے لیے بالحقی حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے فمن پس کون ہے اہتدا ہدایت حاصل کرتا ہے فلے نفس ہی پس اس کی اپنی جان کے لیے ہی ہے ومن ضلع اور جو کوئی گمراہ ہو گیا فانما پس اس کے سوا نہیں یذل اس کی گمراہی کا وبال علیہ اس پر ہے وما انت اور نہیں ہے آپ علیہم ان پر بے وکیل کوئی داروغہ کوئی نگران آپ ان پر بنا کر نہیں بھیجے گئے جی کون کون پڑھ کے آیا صرف وہ ہاتھ اٹھائے آپ تو بالکل پڑھ کے نہیں آئے آپ کا تو پتہ چل رہا ہے جی سب پڑھ کے آئے ہوئے جو ابھی میں پڑھوں گی پڑھ کے آئے ہوئے اس کو ہاں سب پڑھ کے آئے ہوئے مومنہ حبیبہ پچھلا پڑھا ہوتا ہے یہ بھی پڑھا ہوا ہے پڑھا ہوا ہے جی آپ کل نہیں آئی تھی کیوں بیٹا طبیعت کو تو دوائی لے کے آ جائے کرے تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے آ جائے کرے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی مس ہو جاتی ہیں جی اچھا جی ہمارا جو ہے یہاں سے تیسرا رکو چوتھا رکو شروع ہو رہا ہے تیسرا رکو ختم ہوا تھا ہمارا کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جھٹلایا سچائی کو جب اس کے پاس آ گئی جی صدق سے مراد وہ تعلیمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے قرآن ہو یا قرآن کے علاوہ دوسری تعلیم ہو اور وصدق بہی میں سب مومنین داخل ہیں جو ان کی تصدیق کرنے والے ٹھیک ہے حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے تصدیق کی اور اس کے بعد تمام مومنین نے پھر اس کے بعد یہاں پر علیہ اللہ بکاف عبدہ آیت نمبر 36
इस आयत का शान नुज़ूल एक वाक़या है। कुफ़ार ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को डराया कि अगर आपने हमारी बुतों की बेइज्जती की, इन बुतों का असर बहुत सख्त है, इससे आप बच नहीं सकेंगे। इसके जवाब में कहा गया कि अल्लाह अपने बंदों के लिए क्या काफ़ी नहीं है? इसलिए बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ बंदे से मखसूस बंदा यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुराद दिया है। खुलासा तफसीर में इसी को इख्तियार किया गया है। तो और दूसरे मुफस्सिरीन ने बंदे से आम मुराद दिया है। इस आयत की दूसरी क़िरत में जो इबादहु आई है वो भी इसकी तायीद करती है। बहरहाल आम हो जो भी हो, अल्लाह ताला अपने हर बंदे के लिए काफी है। और फिर उसके बाद आयत में है वयुखव्विफूना का, और ये आपको डराते हैं जो अल्लाह के अलावा बुत है, अपने झूठे माबूदों के गजब से डराते हैं। इस आयत से पढ़ने वालों को ये ख्याल करके गुजर जाते हैं कि ये एक खास वाक़े का जिक्र है जिसका ताल्लुक कुफार की धमकियों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से है। इस तरफ ध्यान नहीं देते। इसमें हमारे लिए क्या हिदायत है? हालांकि ये बात खुली हुई है, जो शख्स भी किसी मुसलमान को इसलिए डराए कि तुमने फला हराम काम या गुनाह ना किया तो तुम्हारे हुक्काम या अफसर या जिनके तुम मोहताज हो तुमसे खफा हो जाएंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे। ये सब भी इसमें दाखिल है। अगरचे डराने वाला मुसलमान ही हो और जिससे डराया जाए वो भी मुसलमान हो। ये ऐसा इब्तिला है कि दुनिया के अक्सर मुलाजमतों में लोगों को पेश आता है। अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी पर आमादा हो जाए या अपने अफसरों के जो गुस्से का निशाना बन जाए। इस आयत में उन लोगों को हिदायत है कि अल्लाह ताला के अहकाम की हिफाजत करें कि अल्लाह काफी नहीं है। तुमने खालिस अल्लाह ताला के लिए गुनाहों को तुम खालिस अल्लाह ताला के लिए गुनाहों से बचने का इर्तिकाब और अज़म करो। और जो तुम्हारे हाकिम हैं उनके गुस्से से अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाएंगे या उनका जो भी कुछ करेंगे तुम्हारी अल्लाह की मदद होगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुलाजमत छूट जाएगी तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे रिज़्क़ का दूसरा इंतजाम कर देंगे। और मोमिन का तो काम यही है कि ऐसी जगह मुलाजमत छोड़ दे और कोशिश करता रहे किसी दूसरी जगह मुलाजमत मिल जाए। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया है। अब हमारा अगला रुकू शुरू हो रहा है। अभी तो टाइम है ना जी, इसको करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अल्लाह यतवफ़ी वफ़ात देता है अनफुस जानों को। अल्लाह ताला नफ्स की जगह है, नफ्स की जमा है अनफुस। अल्लाह ताला वफ़ात देता है नफ्सों को हीना जब मौतिहा उनकी मौत का वक्त होता है। वल्लती और वो जो लम तमुत नहीं उन्होंने मरना होता। फी मनामिहा उनकी नींद में भी उनके ऊपर मौत तारी करता है यानी रूह को खींच लेता है। अल्लाह ताला रूह को खींचता है जानों की उनकी मौत के वक्त भी, और नहीं उन्होंने मरना होता उनकी नींद में भी रूह को खींचता है। फयुम से बस रोक लेता है रूह को, खींची हुई रूह को अपने पास ही रोक लेता है। अल्लती वो जो कज़ा जिसके बारे में फैसला कर दिया, अलैया उसके लिए मौता मौत का। वयुरसिलु और भेज देता है उखरा, और भेज देता है दूसरे की। एक की रूह को रोक लिया और दूसरे की रूह को नींद के वक्त में छोड़ दिया। इला अजल मुसम्मा जिसके लिए मरते जिनके लिए सोते हुए मरना नहीं लिखा, उनकी रूह को क्या करता है, दोबारा भेज देता है। वह युरसिलु भेज देता है उखरा दूसरों को, इला अजल मुसम्मा एक मुकर्ररा मुद्दत तक। इस नींद में, इस सारे सोने जागने में, इस रूह के खींचने निकालने में भी आयात निशानी है लिकौमिन उस कौम के लिए यतफक्करून जो गौर व फिक्र करते हैं।
अब क्या इत्तखज़ु इन्होंने बना लिए मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा भी इन्होंने सिफारिशी बना लिए हैं। कुल कह दीजिए अवलऊ, क्या अगर कानू वो होते ला यमलिकूना, ये मालिक नहीं होंगे शयन कुछ भी, वला याकिलून और ना ये अकल रखते हैं। कहा आप फरमा दीजिए कि अगरचे ना ये कोई कुदरत रखते हैं, ना ये कोई मालिक है और ना कुछ समझ रखते हैं, तब भी तुम इनको अल्लाह का साथ शरीक बनाओगे। ना इनके अंदर अक्ल है, ना ये किसी चीज के मालिक है, ये तुम्हारे बुत, फिर भी तुम इनको अल्लाह का शरीक बनाओगे। कुल कह दीजिए लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए, शफाअतु, सफारिश है, जमीयन, सारी की सारी उसी के लिए है, बादशाहत आसमानों की और जमीन की, सुम्मा फिर इलैहि, उसी की तरफ तुरजाऊन, तुम लौटाए जाओगे। व इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, और जब जिक्र किया जाता है अल्लाह का, वादहु, तन्हा अल्लाह का, इश्म अज़्ज़त, रुकने लगते हैं, कुलूबुल लज़ीना, उन लोगों के दिल जो ईमान नहीं लाते आखिरत पर। और जब जिक्र किया जाता है उन बुतों का जो अल्लाह के अलावा है, तो ये काफिर क्या करते हैं, इज़ा अचानक हम वो यस्तबशिरून, खुशियां मनाने लगते हैं। कुल कह दीजिए अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, फातिर समावात, आप पैदा करने वाले हैं आसमानों के और जमीन के, आलिमल आलिमल गैबी, जानने वाले हैं गैब के, वो अंता अल्लाह आप ही, सॉरी, अंता तहकुमु, फैसला फरमाएंगे, बैना इबादे का, अल्लाह आप ही फैसला फरमाएंगे अपने बंदों के दरमियान, फीमा, जिसमें कानू है वो, फी उसमें यख्तलिफून, जिसमें ये इख्तिलाफ कर रहे हैं उसमें आप ही अल्लाह फैसला फरमाएंगे। वलऊ, और अगर, अन्ना, बेशक, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, ज़लमू, उन्होंने जुल्म किया, मा फिल अर्ज, जो जमीन में, माँ जो फिल अर्जी, जमीन में है, जमीन, सारे का सारा, व मिसलहू, और इस जैसा हो जाए। और वो लोग जो जुल्म, जिन्होंने जुल्म किया, उनके लिए जमीन भर या इस जैसा हो जाए, माहू, इसके साथ, जमीन जैसा भी हो और इस जैसा जमीन के साथ और भी हो। लफ्तदऊ, फिदिये में देना चाहे, बदले में देना चाहे, भी उसको, मिन सूइल अजाबी, बुरे अजाब से बचने के लिए, बचना खुद ब्रैकेट में लिखेंगे, यौमल कयामा, कयामत के दिन अजाब से बचने के लिए भी देंगे, तो उनसे कबूल, ब्रैकेट में लिखेंगे, कबूल नहीं किया जाएगा। वह बदा लहुम, और जाहिर होगा उनके लिए, मिन अल्लाही, अल्लाह की तरफ से, क्या जाहिर होगा, ब्रैकेट में वो बहुत सी चीजें हैं जिसमें नामाए आमाल भी होंगे, ऐसे हालात होंगे, माँ जो लम तकूनु, नहीं थे वो, यह तसिबून, जिसके बारे में वो गुमान रखते थे, उनके पास वो आमाल नामे उनके लिए जाहिर होंगे, वो हालात जाहिर होंगे जिनके बारे में वो गुमान भी नहीं रखते थे वो काफिर। वह बदा लहुम, और जाहिर होगा उनके लिए, सय्यातु, बुराइयां, माँ कसबू, जो उन्होंने की होगी। टांगे नहीं हिलाइए, कॉन्शियस होके बैठा करें, कॉन्शियस होके क्लास में बैठा करें, अनकॉन्शियस ना होके बैठा करें। अनकॉन्शियस होने की निशानी होती है कि टांगों का हिलना, हाथों का हिलना। कॉन्शियस होके कुरान की तफसीर पढ़ा करें बच्चों। वह बदा लहुम, और जाहिर होगा उनके लिए, सय्यात, उनकी बुराइयां, माँ का सबू, जो उन्होंने की होंगी, सारी बुराइयां, सारे गुनाहों के पलंदे उनके सामने सारे ढेर लग के खड़े हो जाएंगे। वहा कबे, मस्सा पहुंचती है इंसान को, जुल्म, तकलीफ, दाना, हमें पुकारता है, सुम्मा, फिर, इजा, जब, अव्वलना, हम अता कर देते हैं उसको, नेमतन, नेमत, मिन्ना, अपनी तरफ से नेमत अता कर देते हैं, कौला, उसके बाद इंसान किया, आलहा, इसको, लजीना, उन लोगों ने, मिन कबलिहिम, जो इनसे पहले थे, वो भी ऐसी बातें कहते थे हमारे इल्म की वजह से, जैसे कारून ने कहा था
मुझे मेरे इल्म की वजह से ये सारा माल मिला है। फमागना, बस उनको भी काम नहीं आया, उनको माकानु यक्सिबून, जो वो किया करते थे। फास्वाबहुम, बस पहुंच गया उनको, सय्यआत, उनको बुरा बदला पहुंच गया, माँ का सबू, जो उन्होंने किया था। और वो लोग जो जालिम है, मिन हाउलाई, इनमें से भी जो जालिम है, सयुसीबुहुम, उनको पहुंच जाएगा, सय्यआतु, बुरा बदला, माँ का सबू, जो वो कर रहे हैं। वमा, और नहीं, हम वो बेमोजिजीन, वो हराने आजिज करने वाले नहीं है ये लोग। अवलम, क्या नहीं, यालम, वो जानते, बेशक अल्लाह ताला फैला देता है रिस्क को जिसके लिए चाहता है, और तंग कर देता है। बेशक इसमें भी तो निशानी है उस कौम के लिए, यूमिनून, जो ईमान लाते हैं। जी, अब इसको देख लीजिए। मौत और नींद के वक्त रूह कब्ज, और मौत और नींद के वक्त कब्जे रूह, और दोनों में फर्क क्या है? कि मौत के वक्त भी रूह कब्ज की जाती है, नींद के वक्त भी रूह कब्ज की जाती है। तवफ़ा के माना लेने और कब्ज करने के हैं। इस आयत में हक ताला ने ये बताया, जानदारों की अरवा हर हाल में ही अल्लाह के ही क्या है, कब्जे में है। जेर तसरुफ का क्या मतलब है? कब्जे में है। और वो जब चाहे उनको कब्ज कर लेता है, वापस ले सकता है। और इस तसर्रुफ का एक मुजाहिरा हर जानदार रोजाना देखता भी है, महसूस भी करता है। नींद के वक्त उसकी रूह एक हैसियत से कब्ज हो जाती है और बेदारी के वक्त वापस मिल जाती है। आखिर एक ऐसा वक्त भी आएगा जब बिल्कुल रूह कब्ज कर दी जाएगी और वापस नहीं आएगी। तफसीर मजहरी में कब्ज रूह के माना, इसका ताल्लुक बदन इंसानी से खता कर देने का है। बदन इंसानी, इंसान बिल्कुल ढीला जिस्म हो जाता है जब सो रहा होता है। बदन इंसानी से क्या होता है, रूह क्या हो जाती है, बिल्कुल उसका ताल्लुक कट जाता है। कभी ये जाहिरतन और बातिनन बिल्कुल मुनक़ते कर दी जाती है और इसी का नाम मौत है। कभी सिर्फ जाहिरन मुनक़ता की जाती है, बातिनन नहीं की जाती, जिसका असर ये है सिर्फ हिस्स और हरकत, इरादिया, जो जाहिरी अलामत जिंदगी है वो मुनक़ते हैं। बातिनन ताल्लुक रूह का जिस्म के साथ बाकी रहता है। बातिनन तो रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक रहता है, लेकिन जाहिरन क्या होता है, वो खत्म कर दी जाती है। जिससे वो सांस लेता है और जिंदा रहता है, जो जाहिरन होता है। और सूरत उसकी ये होती है, रूहे इंसानी को आलम मिसाल के मुताल्ला की तरफ मुतवज्जा करके इस आलम से गाफिल और मुअत्तल कर दिया जाता है, ताकि इंसान मुकम्मल आराम पा सके। हमें अमर की चीज, सिर्फ जो बॉडी है वो क्या है, आलम मिसाल। इस आलम से गाफिल और अतल कर दिया जाता है। इंसान बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है हर किस्म की, उसको दुनिया से, हर चीज से हट कटा के। और कभी ये बात नहीं, ताल्लुक भी मुनक़ता कर दिया जाता है। जाहिरी ताल्लुक तो खत्म करवा दिया जाता है ना, एक आदमी सो रहा है, उसका दुनिया वालों से अब कोई ताल्लुक नहीं है, जाहिरी ताल्लुक खत्म। और एक कभी कभी होता है जब इंसान मर जाता है तो उसका बातूनी ताल्लुक भी खत्म हो जाता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, तफसीर मजहरी ने जो है, कब्ज रूह के माना उसका ताल्लुक बदन इंसानी से कता कर देने के हैं। कब्ज रूह के माना उसका ताल्लुक बदन इंसानी से कता कर देने के हैं। ठीक है ना, ये सारा, इसको बहुत अच्छे तरीके से कल मैं इसको सुनूंगी आप लोगों से, ठीक है।
अच्छा, तवफ़्फ़ा बमाना क़ब्ज़, मौत और नींद दोनों में क़ब्ज़ रूह का ये फ़र्क जो ऊपर बयान किया गया है, हज़रत अली करमुल्लाह वजह के कौल से भी इसकी तायीद होती है। उन्होंने फरमाया, सोने के वक़्त इंसान की रूह उसके बदन से निकल जाती है, मगर एक शुआ, हल्का-सा कनेक्शन, शुआ कहते हैं रेज़ को ना, हल्का-सा शुआ रूह को, शुआए रूह की बदन में रहती है, जिससे वो जिंदा रहता है। इस राब्ते शुआई से वो ख्वाब देखता है। फिर वो ख्वाब अगर रूह के आलम मिसाल की तरफ मुतवज्जा रहने की हालत में देखा गया हो तो वो सच्चा ख्वाब होता है, और अगर इस तरफ से बदन की तरफ वापसी की हालत में देखा जाए, अगर उसका वो जो उसने ख्वाब देखा है आलम मिसाल की तरफ मुतवज्जा रहते हुए देखा है तो वो सच्चा है, और अगर उसने वापसी की हालत में देखा है तो वो शैतानी तसर्रुफात होते हैं और वो रोया सदमा नहीं होते। और फरमाया नींद की हालत में जो रूह इंसानी उसके बदन से निकलती है तो बेदारी के वक्त आम झपकने से भी कम मिकदार में बदन बदन में वो रूह वापस आ जाती है। इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, मौत और रूह, इसका कल एक छोटा सा एक टॉपिक एक लिख के ले आइएगा इसको ना। जब एक छोटा सा टॉपिक लिख लेंगे ना, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, सिर्फ 6-7 लाइंस का सिर्फ, के मौत और रूह के कब्ज की कैफियत और उन दोनों में फर्क, ये सवाल मैंने आपको दे दिया। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर है फातिर समावात, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, सही मुस्लिम से रिवायत है, वो कहते हैं मैंने हजरत आयशा से फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद में किस चीज से अ, अलिमिल गैबी व शहादा तहकुमु बैना इबादिका फीमा कानू फी यख्तलिफून, ये तिलावत फरमाते थे। ठीक है। कबूलियत दुआ, हजरत सईद बिन जुबैर फरमाते हैं मुझे कुरान की एक ऐसी आयत मालूम है जिसको पढ़कर जो आदमी दुआ करते हैं कबूल होती है, और वो यही आयत है, अल्लाहुम्मा फातिर समावाती वल अर्ज। हजरत सुफियान सौरी ने इस आयत को पढ़कर फरमाया, हलाकत है रियाकारों के लिए, हलाकत है रियाकारों के लिए। ये आयत उन्हीं से मुतल्लिक है जो दुनिया में नेक काम दिखाने के लिए करते हैं, और लोग भी इनको नेक समझते हैं, खुद भी धोखे में थे, और ये अमाल उनकी निजात का जरिया नहीं बन सकेंगे क्योंकि उनमें इखलास नहीं था। इसलिए अल्लाह ताला के नजदीक ऐसे अमाल का कोई अजर सवाब नहीं, और इसी के लिए बारे में फरमाया उनके गुमान के खिलाफ होगा, वह बदाल हम उनके लिए जाहिर होंगे ऐसे हालात जिनका उनको गुमान भी नहीं होगा। मुशाजरात सहाबा के मुतालिक एक अहम हिदायत, हजरत रबी बिन कैसम से ने किसी ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बारे में सवाल किया तो उन्होंने एक आग भरी और फरमाया, कयामत के दिन सहाबा के बाहिमी इख्तिलाफ के मुतालिक जो तुम्हारे दिल में कोई खटक है इस आयत को पढ़ लिया करो, अल्लाह ताला कयामत के दिन सब अपने बंदों के दरमियान फैसला फरमाएंगे। ठीक है। अब हमारा हो गया रुकू पूरा। चलो, आयत नंबर 56 तक हमारा हो गया इंशाल्लाह। ठीक है। 52, सॉरी 52, 3 रुकू पढ़े आज हमने। ठीक है। इंशाल्लाह ताला आपका तो सिलेबस का मुझे इतना नहीं है सबसे ज्यादा। ठीक है, इंशाल्लाह। सलाम।